Hello kids, this is your mentor Neetu. We are doing chapter 12 algebraic expression. So let's start introduction. Let us recall some of the terms studied in the previous class. The first one is variable or literal. It's a term that does not have a fixed value. Okay, the value of a variable keeps varying, means changing. The variables are denoted using small letters like X, Y, Z, P, Q, A, B, like this. Okay. Now constant. What do you mean by constant? Constant is a term which is fixed, which has a fixed value. So the value of a constant never changes. Some examples are numbers like 2, 3, 0, -5, etc. So combination by addition, subtraction, multiplication and division of constant and variables forms an algebraic expression. जब हम constant यानी numbers और variables यानी letters A, B, C, X, Y, Z कुछ भी इनको हम combine कर देंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन साइन से, तो वो जो आपके पास फॉर्म आएगी that form is said to be algebraic expression. Okay, so a few important terms that make up an algebraic expression are defined as follow. So first is algebraic expression. It is an expression formed by using mathematical operation, addition, subtraction, multiplication and division on variables and constant. As I told you, like 4x plus 10, 4 into x किया plus 10 कर दिया, it is forming an expression. Like 4 plus 10x minus 15p, this is also an algebraic expression. Now the next is terms. Terms क्या होते हैं? The expressions are made by addition of terms. Suppose आपने 4x plus 10 लिया example, it is an expression, it is an algebraic expression. इसमें कौन कौन से terms हैं? इसमें 4x और 10 we are adding. So 4x and 10, these are the terms of this expression. Means इस expression में कितनी terms हैं? 2 terms हैं, 4x and 10. ऐसे हम एक और कंसिडर करते हैं 4 plus 10x minus 15p. इसमें आप देखो इसमें कितनी terms हैं? 1 term 4, 1 is 10x and 1 is 15p, minus 15p और you can say. So इन सबको हमने जब तीनों को ऐड किया तो we are getting this expression. Okay, so what do you mean by expression? जब हम constant और variable को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन से कंबाइन कर देंगे वो बन जाएगा expression. और टर्म्स क्या होंगी? जो नंबर, जो constant, जो वेरिएबल एक्सप्रेशन में यूज हो रहे हैं प्लस और माइनस साइन से, लाइक here 4x and 10, these are the terms. Okay, now factors. The terms are made up of the product of factors. जो terms हम use कर रहे हैं, suppose one example here 4xp plus 7y square. इसमें क्या है? 2 terms है 4xp और एक term है 7y square. अब आपको पता है फैक्टर क्या होता है? जैसे 6 का फैक्टर क्या होगा? 2 into 3 और 12 का फैक्टर क्या होंगे? आप ये भी कह सकते हो 2 into 6 या 3 into 4. ओके, तो इसमें क्या है? 4xp है. 4xp में क्या फैक्टर्स होंगे इस टर्म के? 4x and p. ओके, सो 4x and p फर्स्ट टर्म में, और सेकेंड टर्म में 7y स्क्वायर है. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7 into y into y. तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 7y y, राइट? सो द नेक्स्ट इज coefficient. Coefficient means the numerical factor of a term is called the coefficient of the term. अभी हमने फैक्टर्स की बात की है. फैक्टर्स में आप देखोगे वेरिएबल्स भी आ गए थे, लेकिन जब हम कोफिशिएंट की बात करते हैं उसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर, मतलब नंबर लेंगे. ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, राइट? सो फॉर एग्जांपल इन द टर्म 4xy, 4xy में फैक्टर्स क्या हैं? 4x और y. और अगर हम कोफिशिएंट की बात करेंगे तो कोफिशिएंट इज 4. Okay, so 4 is the coefficient of the term
4xy। सिमिलरली अगर आप एक टर्म लेंगे 15x²y तो इसमें कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 15, राइट। तो कोफिशिएंट में सिर्फ आपने न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। When you will do question, it would be more clear to you. Now we are talking about types of algebraic expression. Depending on the number of terms, algebraic expressions are classified as follow. The first one is monomial. Monomial means only one term. जिस expression में सिर्फ एक term होगी उसको हम क्या बोलेंगे monomial. For example, -9 and 5/3a², only one term, okay, and 3x²y², only one term. So these are monomials. Now binomial, an expression, an algebraic expression containing two terms is called a binomial. जिसमें two terms होंगी वो expression बन जाएगा हमारा binomial, like a² + b², 7x + 9y, 3a² b + 8. तो ये क्या बन जाएंगे हमारे binomials, okay. So there is one example they have given us 2a + 5a. अगर आपको suppose question में दे रखा है 2a + 5a, अब some children they will say yes it is a binomial, but ये दोनों टर्म्स क्या है like टर्म्स हैं, सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7a. So it is a monomial, it is not a binomial, right. Now the next is trinomial. An algebraic expression containing three terms is called a trinomial. In other words, three monomials on addition give a trinomial if they form three different terms, like 2a + b - c, x² - y² + 4xy. So how many terms we are getting? Three terms. So these are trinomials. The next is polynomial. An algebraic expression that contains many terms is called a polynomial. Like here we have four terms, x² + y² + 2xy + 7. Here we have x³ - y³ + 3xy² - 3x²y. So these are polynomials, okay. The next is example 1. Write the terms, factors and coefficient for the following expression. A part 15xy + 4. तो हमने यहाँ पे expression लिख दी है, इसमें terms, then factors and then coefficient. So see the first expression is 15xy + 4. We have here two terms 15xy and 4. एंड फैक्टर्स क्या होंगे 15xy के पहले फैक्टर्स फाइंड करो 15, x, y और 4 का फैक्टर 4 ओनली, ओके. एंड कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स, अब फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा 15 और सेकेंड टर्म इज अ कांस्टेंट ओनली, तो सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा 4. नाउ द सेकेंड एक्सप्रेशन इज -18xp + y²z. अब इसमें टू टर्म्स हैं -18xp एंड y²z. सो नाउ राइट द फैक्टर्स. फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स क्या होंगे -18xp एंड द सेकेंड टर्म के y/z, ओके. यहाँ पे आप 18 को भी ब्रेक कर सकते हैं, लाइक 6, 3, okay, 9, 2, so many. And coefficient of the first term is -18 and coefficient of second term is +1, right. Similarly third part 70x²yp + 67m. How many terms? Again two terms here, so we are writing the terms. Now the first one factor सबको separate कर देंगे and 67m, 67 and m. Similarly आप 70 के भी फैक्टर्स ब्रेक कर सकते हैं 10, 7, okay. And what is the coefficient of first term? Coefficient of first term is 70 and coefficient of second term is 67. So 3 more examples like yx - y है, तो आप टर्म क्या लेंगे yx and -y. So
इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे y एंड x, और इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे -1 एंड y, and coefficient of first term is 1 and coefficient of second term is -1. Similarly, you can try these two parts. Now, like and unlike terms. So, like terms you know very well. Terms of algebraic expression having same algebraic factors are called like terms, means same variables. So we can say that all terms containing same literal number with the same exponents are called like terms. For example, 2x square y and x square y and -3x square y. इन तीनों के पास क्या है x square y, x square y, x square y. So these are like terms. आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं like 2x -5x. Only variable must be same. Numbers चाहे प्लस का हो माइनस का हो, it doesn't matter, only variable should be same, right? Similarly, unlike terms, अब like term में क्या था same variable, unlike में क्या होगा different variables. Unlike terms, terms having different variables or different literal numbers are called unlike terms. For example, 2x square y and 2xy square. अब इसमें क्या है, इसमें x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, और सेकेंड टर्म में x की पावर 1 है, y की पावर 2 है. सो दीज आर डिफरेंट, सो दीज आर अनलाइक टर्म्स. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ एन एक्सप्रेशन. अब हम बात करते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की डिग्री की. सो लेट्स सी पॉलिनोमियल्स और एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन लाइक 6x plus 2y plus z and 8z minus 2b minus 3c are trinomials. आप देखो दोनों में 3 टर्म्स है with 3 variables. Similarly, 2x minus 3y and 5b minus 2c are binomials with 2 variables. If you notice, all these expressions have index or power of 1. अगर आप देखेंगे इनके जो वेरिएबल्स की है सबकी पावर क्या है 1 है. सो अगर हम एक सेकेंड एग्जाम्पल कंसिडर करें 3a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 7, इट इज़ अ ट्राइनोमियल विद 1 वेरिएबल a. इसमें वेरिएबल सेम है बट द पावर ऑफ 1 टर्म यानी जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर आप देखो दैट इज 2. इट इज़ हियर 1 और थर्ड में तो है ही नहीं, मीन्स 0. तो आप देखो जो फर्स्ट टर्म में पावर है वेरिएबल की दैट इज 2, हाईएस्ट पावर इज 2. सो इट मीन्स इट्स डिग्री इज 2. ओके, सिमिलरली वन मोर एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग 4 टर्म्स हेयर. सो अगेन 1 वेरिएबल विद a और आप देखो फर्स्ट टर्म में पावर 3 है, सेकेंड में पावर 2 है, थर्ड में पावर 1 है और लास्ट में 0 है. तो हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की 3. सो द टर्म विद द हाईएस्ट पावर इन एन एक्सप्रेशन डिसाइड्स द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो एक्सप्रेशन में जिस टर्म के पास हाईएस्ट पावर है वो डिसाइड करेगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट. ये तो था 1 वेरिएबल की बात. अब सपोज हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स आ जाएं. सपोज if an expression has 2 variables like this 2x square y minus 3xy plus 5, then the degree of this expression will be 3. Why? जब डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे हमने क्या करना है, टर्म्स की पावर को ऐड करना है. जैसे इस एग्जांपल में फर्स्ट टर्म जो है वो है 2x square y, तो जो पावर है x की तो 2 है, y की 1 है, तो इसमें पावर क्या हो जाएगी फर्स्ट टर्म की 3. सेकेंड टर्म की पावर क्या हो जाएगी 1 + 1 2 और लास्ट टर्म में तो 0 ही है. सो हाईएस्ट इज 3, दैट्स व्हाई इट्स डिग्री इज 3. Okay, so it means that if there is more than 1 variable in the same term, then the powers are added to decide the degree of the term. जितने variables different variables होंगे हमने उन सब की पावर को ऐड करना है term wise, और जो highest होगी that will decide the
degree of the polynomial. Okay, when you will do question, it would be more clear to you. So come to example 2. Find the degree of the given polynomial. A part a plus a square plus a क्यूब प्लस 4. इसमें सिंगल वेरिएबल है a, तो हाईएस्ट पावर किस में है? 3. So it means what is the degree? Degree is 3, right? Now b part. b में आप देख सकते हैं -3a स्क्वायर b प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 5ab प्लस 7 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं. तो हम क्या करेंगे? टर्म वाइज पावर फाइंड करेंगे. फर्स्ट टर्म में पावर क्या है? 2 प्लस 1 3. सेकेंड टर्म में पावर क्या है? 2 प्लस 2 4. थर्ड टर्म में पावर क्या है? 1 प्लस 1 2. और इसमें क्या है? 0. सो out of these 4 numbers, which one is highest? Of course 4 is highest. So what is the degree? Degree is 4. Okay, simple है. आपने पावर्स को ऐड करना है डिफरेंट वेरिएबल्स की टर्म वाइज, और जो हाईएस्ट होगी दैट इज द डिग्री, राइट? नाउ एग्जाम्पल 3. Write the coefficient for the following expression. Like a part x in 3xy. जब हम बात करते हैं कोफिशिएंट की like x in 3xy, इसका मतलब क्या है कि हमें उसमें से x को छोड़ देना है और रिमेनिंग पार्ट लेना है. We know that coefficient of a term is the number written in the term, but the coefficient of some variable or factor of a term is the product of the remaining factors. अगर हम सिंपल पूछेंगे राइट द कोफिशिएंट ऑफ दिस 3xy, फिर तो आप बोलोगे 3. बट अब इन्होंने क्वेश्चन दिया राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन 3xy, यानी वो वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछ रहे हैं. तो x को छोड़ दो, व्हाट इज लेफ्ट? 3y. सो व्हाट इज आंसर? 3y. ऐसे b पार्ट में abc इन -10 abc, abc छोड़ दो, आंसर इज -10. c पार्ट में q इन -4q स्क्वायर, -4q स्क्वायर में q 2 टाइम्स है, a q को छोड़ देंगे, व्हाट इज लेफ्ट? -4q. ओके, नाउ सम पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड. अ कांस्टेंट इज आल्सो अ टर्म. द कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म रेफर्स टू द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म. Now example 4. Write the coefficient of x in each of the following. A part -6x, so remaining is -6. 5x में x छोड़ दो, आंसर is 5. C part, अब इसमें क्या है? x यहाँ पर है, x को छोड़ दो, -5/3a. Okay, so it's very easy and interesting. So exercise 12.1. Based on such type of question, you can try on your own. Now we are talking about addition of algebraic expressions. The basic principle of addition is that we can add like terms only. हम सिर्फ like terms को add कर सकते हैं, unlike को नहीं. Unlike terms cannot be added. So to add 2 or more algebraic expression, we collect different groups of like terms and add the coefficient of like terms in each group. So we can follow 2 methods. The one is horizontal method and the second is column method. हम addition जो है वो 2 method से कर सकते हैं. One is horizontal and one is column. So let's see how to do it. In this method of addition, we arrange all the terms in a horizontal line and then we add by combining the like terms. हम क्या करेंगे? एक ही लाइन में सारी टर्म्स को लिख लेंगे और फिर जो like terms हैं उनको कलेक्ट करेंगे. Let's see how to do it. Example 1. Add 5xy square -3xy square 2xy square and -7y square x. अब आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि दीज आर लाइक टर्म्स बिकॉज सबके वेरिएबल्स जो है एक्स वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एक्स इज सेम एज एक्स वाई स्क्वायर. तो हम सबको ऐड कर देंगे. फर्स्ट लाइन में हम लिखेंगे 5xy स्क्वायर प्लस जो नेगेटिव टर्म्स हैं वी कैन राइट इन ब्रैकेट बिकॉज 2 साइंस नेवर कम टुगेदर. तो लाइक दिस वी कैन राइट इट. अब आपने क्या करना है?
इनके कोफिशिएंट को देखो, ये 5 है, ये -3 है, ये +2 है, ये -7 है। यानी हमने क्या करना है कैलकुलेशन 5 - 3 + 2 - 7 एंड यू नो वेरी वेल, पहले हम सेम साइन 5 + 2 7 -3 - 7 -10 जैसे हम इंटीजर्स में करते हैं, द सेम वे 7 - 10, व्हाट इज 7 - 10? दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, सो माइनस करेंगे, 10 में 7 माइनस करेंगे, इट वुड बी -3. So what is answer? -3xy². Okay. Now see the next one, example 2. Find the sum of 2x² y minus 3yx² plus 2xy minus 7 and minus 5yx² plus 2xy minus 15. अब इसमें दो एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास. फर्स्ट में मोनोमियल्स थे सारे, तो हमने सिंपली उनको ऐड करके लिख दिया. इसमें भी सिंपल हमें करना है फर्स्ट एक्सप्रेशन प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन, फिर हम कलेक्ट करेंगे लाइक टर्म्स को. सो वी आर राइटिंग इन अ लाइन लाइक दिस. अब आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है? x² y. अब देखो x² y कहीं और है, x² y हमारे पास ये भी है, -3yx² और -5yx². तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को कलेक्ट कर लेंगे. 2x² y minus 3x² y minus 5x² y, राइट. अब हमें क्या करनी है, x y की टर्म लेनी है, प्लस 2xy प्लस 2xy. तो इन दोनों को कलेक्ट कर लिया. अब हमने क्या किया, कांस्टेंट बच गए, -7 -15, तो उन दोनों को कलेक्ट कर लिया, राइट. अब आप काउंट कर सकते हैं कि आपने सारी टर्म्स ली हैं या नहीं है. टोटल टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. So we have taken all the terms, right. तो अब आपने कैलकुलेशन करना है. फर्स्ट ब्रैकेट में x² y के कोफिशिएंट को कलेक्ट करो, +2 -3 -5. आप देखो ये दोनों नेगेटिव हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 2 - 8, और 2 - 8 क्या होता है हमारा, -6, और वेरिएबल एज इट इज x² y, राइट. देन xy plus 2xy plus 2xy plus 2 plus 2 plus 4xy. ओके. देन कांस्टेंट -7 -15, ये क्या आ जाएगा हमारा, -22. So it's very easy and interesting. You can try many more questions. Now the second method is column method. Here each expression is written in a separate row such that their like terms are arranged one below the other in a column. Therefore addition is done column wise. Now example 3, add the following: 6x minus 4y plus 3z, 5x minus 7z plus 3y, z minus x minus y. अब आपने क्या किया, पहले आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा 6x minus 4y plus 3z, यानी x के नीचे x की टर्म्स लिखो, y के नीचे y की टर्म्स लिखते जाओ एंड z के नीचे z की टर्म लिखते जाओ. सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या है, 5x तो 5x, फिर -7z तो -7z z के नीचे आएगा, और +3y y के नीचे. ओके, आपको रीअरेंज करना है टर्म्स को. देन z minus x minus y, तो पहले -x देन -y plus z, राइट. वी आर नॉट चेंजिंग द साइन ऑफ द टर्म्स, हम बस उनको रीअरेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कॉलम्स, राइट. सो नाउ 6x plus 5x, अब इनको आप इनके कोफिशिएंट देखो, 6 plus 5 दोनों प्लस के हैं, 11 minus 1 10x. सेकेंड y देखो, इसमें क्या है, -4 minus 1 -5 plus 3 -2y. फिर आप इसमें देखो, +3 plus 1 +4 -7, ये क्या आ जाएगा, -3z. सो दिस इज द आंसर. यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशंस की है जो भी हमने कोफिशिएंट की थी, लाइक 6 plus 5 -1, then -4 plus 3 -1, okay, then +3 -7 +1, right. So these are very simple questions, no need to worry.
Now subtraction of algebraic expressions. So when we subtract a given expression from another expression, we change the sign of each term of the expression to be subtracted and then add it to the expression from which subtraction is to be done. Simply आपने जो भी subtract करना है उसके sign को change कर देना है. Let's see how to do it. Example 4, subtract 2ab minus 3b square plus 2a square minus 1 from 5a square minus 2b square plus 6ab plus 3. तो आपने सेकेंड एक्सप्रेशन को पहले लिखा, देन माइनस, फिर हम लगाएंगे ब्रैकेट. ओके, देखो एडिशन में देर इज नो नीड टू पुट द ब्रैकेट, लेकिन माइनस में हमें ब्रैकेट लगाना है बिकॉज वी आर चेंजिंग द साइन ऑफ द सेकेंड एक्सप्रेशन. सी 5a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3 एज इट इज आप लिख देंगे. देन माइनस 2a स्क्वायर, इट इज माइनस, इट बिकम्स प्लस 3b स्क्वायर प्लस 2ab है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 2ab. माइनस 1 है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 1. So notice the change in sign of each term of the second expression. Now collect the like terms. अब 5a स्क्वायर है माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है. देन माइनस 2b स्क्वायर है प्लस 3b स्क्वायर, देन प्लस 6ab है माइनस 2ab, देन प्लस 3 प्लस 1. सबको हमने कलेक्ट कर लिया लाइक टर्म्स को. 5 माइनस 2 इट बिकम्स 3, माइनस 2 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस 3 माइनस 2 1b स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 2 प्लस 4 and 3 plus 1 is 4, right? Now the second is example 5, subtract minus 11p square q square plus 8pq plus 6 from 9p square q square minus 6pq minus 9. तो हम सेकेंड को ऊपर लिख देंगे, फर्स्ट को हम लिखेंगे नीचे, राइट? हम अब कर देंगे साइन चेंज, बिकॉज सब्ट्रैक्शन है. एडिशन में तो आप कुछ नहीं करेंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे, बट सब्ट्रैक्शन में यू हैव टू चेंज द साइन. आपने क्या किया, आपने लिखा 9p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 6pq माइनस 9. नाउ अरेंज द लाइक टर्म्स बिलो ईच अदर. सो इट इज माइनस 11p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 8pq प्लस 6. माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस, प्लस है, ये टर्म प्लस है तो ये बन जाएगी माइनस. आपने सेकेंड एक्सप्रेशन की टर्म्स के साइन को चेंज करना है, और प्लस 6 है तो ये बन जाएगा माइनस, राइट? अब कैलकुलेशन, प्लस 9 प्लस 11 प्लस 20p स्क्वायर q स्क्वायर, माइनस 6 माइनस 8, माइनस माइनस प्लस, बट साइन इज माइनस, माइनस 14pq, minus 9 minus 6, that is minus 15. Okay, so note that the sign of each term of second expression has been changed here and operate using these signs only. Okay, now simplification of algebraic expression. An expression containing brackets is simplified by removing the brackets एंड देन कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स. हमें क्या करना है, अगर ब्रैकेट है कहीं पर तो उसे पहले ब्रैकेट को रिमूव करना है और फिर जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है लाइक टर्म्स का वी विल डू. सो टू फर्दर इलैबोरेट ऑन दिस लेट अस सी द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 6, सिंप्लीफाई 17x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 7 माइनस ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10. एज आई टोल्ड यू, अगर माइनस साइन किसी भी ब्रैकेट के बाहर होता है तो हमें क्या करना है, साइन चेंज. तो आप ये वाले तीन टर्म्स तो एज इट इज आ जाएंगी, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10. नाउ कंबाइन द लाइक टर्म्स, 17x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 5x प्लस 7 माइनस 10. अब 17 माइनस 2 15x स्क्वायर माइनस 15 माइनस 5, दोनों नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस माइनस 20.
and plus 7 minus 10 minus 3. Okay, so like this you can try many more questions. Exercise 12.2 based on such type of question you can do on your own. Now finding the value of an algebraic expression. The value of an algebraic expression varies with the change in the value of the variable or variables because an expression is dependent on the variable. जो भी algebraic expression है वो depend करता है variables पे. अगर हम variable की value change करेंगे तो automatically expression की value भी change हो जाएगी. So let's see, for example, if the expression is x plus 1, हम एक example है x plus 1. अगर हम x को change करेंगे, suppose x 1 लिया हमने तो 1 plus 1 2, x is 2, 2 plus 1 3, x is 3, 3 plus 1 4. तो अगर हम x को चेंज करते जाएंगे ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज. सो हेंस द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल द वैल्यू ऑफ द algebraic expression also changes, right? Now example 1, find the value of the given expression for the given value of the variable. A part, 81 minus 4x square for x equal to 4. यानी हमें x को क्या पुट करना है यहाँ पे 4. हमारे पास क्या है 81 माइनस 4x स्क्वायर. 81 माइनस 4x की जगह हम लगा देंगे 4 यानी 4 की पावर 2 एज इट इज. अब आप इसको सॉल्व करेंगे 81 एज इट इज माइनस साइन एज इट इज 4 इंटू 16 और 4 इंटू 16 क्या होगा 64. सो 81 माइनस 64 आंसर इज 17. सिमिलरली बी पार्ट a square plus b square minus ab for a1 and b minus 2. अब हम a की जगह 1 पुट कर देंगे और b की जगह minus 2. So a square means 1 square plus b square means minus 2 की power 2 minus a into b 1 into minus 2. 1 square is 1 minus 2 square is minus 2 into minus 2. It becomes plus 4. So 1 plus 4 and minus 1 into minus 2. Minus minus की multiply क्या बन जाती है plus 2. So you can add these value. Answer is 7. Okay. Now example 2. Find the value when x is minus 1 and y is 3. A part minus 4x square y square plus 2xy cube minus 3x square y. अब जहाँ पे x है वहाँ पे हम -1 लगा देंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सो -4 इंटू -1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर फर्स्ट टर्म में प्लस. नाउ सेकेंड टर्म 2x है तो -1, y है तो 3 क्यूब. सो 2 इंटू -1 इंटू 3 क्यूब. थर्ड टर्म में -3x स्क्वायर y है -3 इंटू -1 स्क्वायर इंटू 3. नाउ सिंप्लीफाइड केयरफुली. अब ध्यान से करना है इसको. -4 -1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1 और 3 का स्क्वायर 9. सो -4 इंटू 9. अब यहाँ पे देखो साइन, आपने साइन का यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द साइन. +2 इंटू -1 इंटू 3 क्यूब. 3 क्यूब तो बन जाएगा हमारा 27 और प्लस माइनस क्या आ जाएगा -2 इंटू 27. नाउ लुक एट हियर. -3 इंटू -1 का स्क्वायर बन जाएगा +1 इंटू 3. सो -3 इंटू 3. तो हम सिंप्लीफाई कर देंगे. -36 -54 -9 ऑल आर नेगेटिव. नेगेटिव टर्म्स का मतलब क्या है, सबको ऐड करेंगे बट द साइन इज माइनस. सो -99. सिमिलरली नाउ बी पार्ट 3x स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर y. 3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू -1 इंटू 3 की पावर 2 -5 इंटू -1 रेज़्ड पावर 2 इंटू 3. अब सिंप्लीफाई करेंगे. -1 रेज़्ड पावर 2 इट बिकम्स 1. सो 3 इंटू 1 देन
+2 -1 -2 बन जाएगा एंड 3 raised power 2 is 9. So -2 into 9. Here -5 ये बन जाएगा 1 और ये 3 as it is. So -5 into 3. अब सिंप्लीफाई करेंगे 3 into 1 3 -18 -15. अब आपके पास क्या है, दो नेगेटिव टर्म है -18 एंड -15. तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 -33. इन दोनों को आप ऐड कर देंगे बट साइन वुड बी नेगेटिव. 3 -33 तो ये क्या आ जाएगा हमारा -30 बिकॉज प्लस माइनस क्या होता है माइनस. बट हम साइन किसका लगाएंगे, बिगर टर्म का. बिगर टर्म क्या है -33. सो दैट्स व्हाई इट इज -30. ओके, so very interesting. Now 12.3, based on such type of question you can try these one. Now we are talking about identities, very important. Products of some binomials occur very frequently in algebra. It is therefore useful to remember their answer. So let's see the first one, a plus b into a plus b, or we can say a plus b whole power 2. जब दो बाइनोमियल हो, सेम टर्म्स हो और प्लस साइन से कनेक्टेड हो तो फॉर्मूला क्या बन जाता है a प्लस बी की पावर 2. जब आप इसे ओपन करेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, यू नो वेरी वेल हाउ टू मल्टीप्लाई टू बाइनोमियल्स. तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा a² प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस b². यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये लाइक टर्म्स है a² प्लस 2ab प्लस b². ऐसे ही आपके पास अगर 2 टर्म्स आती हैं सेम हैं और माइनस से कनेक्टेड हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा a माइनस बी की पावर 2. तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा a² माइनस 2ab प्लस b². नाउ द थर्ड इज a² माइनस b². ये क्या बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. यानी अगर एक प्लस साइन है और एक माइनस साइन है तो हमारे पास क्या होगा a² माइनस b². These are very important. Okay, so they are known as identities as they are true for all values of a and b. Let's see example 1. Verify the 3 identities for a equal to 7 and b equal to 3. The first one a plus b की पावर 2, वो क्या है a² प्लस 2ab प्लस b². अब a की वैल्यू पुट कर दो 7 एंड b is 3. 7 प्लस 3 क्या बन जाएगा 10. 10 की पावर 2 मीन्स ये बन जाएगा 100. नाउ सी दिस साइड वेदर वी आर गेटिंग 100 और नॉट. So 7² plus 2 into 7 into 3 plus 3² means 49 plus 42 plus 9. तो ये भी क्या है 100. It means left hand side is equal to right hand side. Now the second identity a minus b whole power 2, that is a² minus 2ab plus b². So 7 minus 3 raised power 2 equals to 7² minus 2 into 7 into 3 plus 3². Calculated 7 minus 3 क्या होगा 4 and 4 raised power 2 is 16. इस साइड तो 16 आ गया लेफ्ट हैंड साइड. अब हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड. इट इज 49 माइनस 42 प्लस 9. तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा 16. सो बोथ द साइड्स आर सेम. नाउ द थर्ड वन a² minus b² equals to a plus b into a minus b. So 7² minus 3², ये क्या बनेगा 49 minus 9 means 40. Now come to this side. It becomes 7 plus 3 into 7 minus 3, 10 into 4, 40. So that's why both the sides are same. Okay. The next is example 2. Evaluate the following using identities. A part 2x plus 3y whole power 2. आप देखो इसमें प्लस साइन है तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है हमें. फर्स्ट वन a प्लस बी होल पावर 2 a² प्लस 2ab प्लस b². यानी a इसमें क्या है 2x और b क्या है 3y.
तो हम क्या करेंगे, a की जगह 2x सब्स्टिट्यूट करेंगे और b की जगह हम 3y सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो a स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab यानी 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 3y होल पावर 2. सो नाउ कैलकुलेटेड 2x होल पावर 2 क्या बन जाएगा, 4x रेज पावर 2. अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो नंबर्स को, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, xy मिडिल टर्म एंड द लास्ट टर्म 3y होल पावर 2, 3y इंटू 3y, 3 3 जा 9, y into y square, right? Now similarly b part 4a minus 5b whole power 2. अब इसमें नेगेटिव साइन है तो हम यूज करेंगे सेकेंड आइडेंटिटी. सो here a is 4a and b is 5b. So 4a minus 5b whole power 2 equals to 4a whole power 2 minus 2 into 4a into 5b plus 5b raised power 2. Calculated 4a into 4a 16a square minus 2 4s are 8 into 5 40ab plus 25b square. Okay, now similarly c part 3a plus 7b 3a minus 7b. आप देखो टर्म सेम है लेकिन बीच के साइन डिफरेंट हो गए, तो विच आइडेंटिटी, थर्ड वन, इट बिकम्स इक्वल टू 3a होल स्क्वायर माइनस 7b होल पावर 2. सो 3a होल पावर 2 क्या होगा, 9a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर. सो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग. यू कैन ट्राई some more question like this. Now example 3, evaluate the following identities. 15 स्क्वायर है, अब 15 को हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे 10 प्लस 5. सो 10 प्लस 5 होल पावर 2. सो 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर. सो 100 प्लस 100 प्लस 25, इट बिकम्स 225. Similarly b पार्ट है 96 स्क्वायर मीन्स 100 माइनस 4 की पावर 2 है. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. सो 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर. कैलकुलेट द वैल्यूज, you are getting this answer. Now the next is 5.2 into 4.8. अब इसमें हमें कुछ सोचना है बिकॉज नंबर्स आर डिफरेंट, और ऐसे अरेंज करें कि ए बी सेम बने. लाइक 5.2 है तो वी कैन राइट 5 प्लस 0.2, और 4.8 को हम क्या लिखेंगे, 4 प्लस 0.8. नो, ए और बी सेम लाने हैं ना, सो हम इसको लिख देंगे 5 माइनस 0.2. अब ये बन जाएगी आइडेंटिटी, यानी a plus b, a minus b. So we can simplify a square minus b square. 25 minus 0.004. We can calculate it. Right? So these are very important and interesting. So 12.4 based on such type of question you can try on your own. Now we are coming to summary point. An expression is a combination of constant and variables connected by any or all of the four fundamental operation: plus, minus, multiply, division. The second point, the different parts of the expression separated by sign plus or minus are called the terms of the expression. An algebraic expression containing one term is called a monomials. Two monomials on addition give a binomial if they form two different terms. Three monomials on addition give a trinomial if they form three different terms. To add or subtract two or more algebraic expressions, first we collect the like terms and find the sum or difference of the constant coefficient of these terms, right? Now some MCQs given over here, you can try on your own, and one mind booster, you can try these one. Thank you for watching this video. Stay connected with us till the next video. Have a nice day. Take care.